Hi dear students, here Professor Anil Gorak Darekar from Dhole Patil College of Engineering, Kharadi, Pune. Today I am going to tell you how to prepare for competitive examination like CET, JE, NEET and how to manage time effectively during examination. My dear students, my subject is chemistry. I qualified NET examination in 2012 with 51 rank all over India. And that time my examination pattern was multiple choice question, that is MCQ based examination was there. So here, before preparing for any examination, as I said in my last video, that you need to take care of 5 important factors, that is proper thinking, proper planning, self-commitment, implementation and consistency in that work. So these 5 factors you have to keep with yourself throughout the life so that you able to achieve whatever you want. Let us see how to prepare for CET examination. For example, you want to take admission for engineering and you want to prepare for physics, chemistry and mathematics subject. So my dear students, as far as preparation is concerned for any competitive examination, you require 3 important things. In that first one, syllabus of that examination. Second thing, study material for preparation. Third one, important question bank. If you have these 3 things and 5 factors as I said just now, right, then you able to score good marks in your examination. For preparation, first you need to go through syllabus, with what is actual syllabus for chemistry, physics and mathematics, right, for CET examination that you are going to answer. Begins with preparation. As far as preparation is concerned, after seeing a syllabus copy, for example, your interested topic is chemistry, or you can say your best subject is chemistry, then you can start from easy subject, right? So you selected chemistry subject for preparation first. So here what you have to do, you have to go through previous year question papers. If you go through previous year question papers, you will get clear-cut idea then that on which topic maximum questions are coming. Means through that important question paper, you will get idea that on which topic you need to focus more, you need to give more time, you need to give more concentration, attention on that topic, right? So after doing a proper analysis of question paper, you will come to know that on which topic you need to focus more, right? From that topic you have to start your preparation. For example, you selected topic halogen derivative of alkane from chemistry. Then first you have to go through all syllabus point, all the points that coming under halogen derivative of alkane, and during a preparation you have to understand each and every concept properly. If your concept understanding is proper, right, you able to answer any type of MCQ on that particular concept. So here my punchline is that for MCQ examination, run behind the concept, correct option will run behind you during examination, right? Means I want to say, try to understand each and every concept properly, thoroughly, right? Once you know that concept, you know that heart of that point effectively, you able to answer each type of MCQ on that topic. Most of the time students कहते हैं कि मैंने बहुत पढ़ाई की, दिन रात पढ़ाई की, फिर भी मुझे एग्जाम या मुझे जो मार्क्स आने चाहिए थे मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उस तरीके से मुझे मार्क्स नहीं आए, मुझे मार्क्स मिले नहीं. What is the reason behind it? Right? Most of the students simply spending day and night while reading MCQ. Simple question, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद उसका ऑप्शन सही कौन सा है वो देखते हैं,
क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन सही कौन सा है वो देखते हैं, राइट? दिस इज टोटली रॉन्ग. What exactly you need to do? You need to go through that concept thoroughly, properly. You need to understand that concept effectively. Once you understand that concept, definitely you are able to answer any type of MCQ. So let me tell you, for MCQ examination, first important thing, that is understanding of concept. Once you understood that concept, then you can go through question paper. You can go through all possible questions that coming on that topic, right? Means after preparation आप क्या कर रहे हो? MCQ की पढ़ाई कर रहे हो, MCQ देख रहे हो कि किस तरीके से MCQ उस टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं. Are you getting? Means उससे आपको पता चलेगा कि मैंने अगर X पॉइंट पढ़ा है और उस पॉइंट के ऊपर इस तरीके से क्वेश्चंस रेज हो रहे, तो जो मैंने पढ़ा है वो इनफ है या और मुझे उसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी. Are you getting? That balance you need to do. So likewise, you have to go through each chapter theoretically, and after complete topic preparation, you have to go through MCQ. So preparation of topic, go through MCQ, right? Likewise, you have to finish subject, right? Likewise, you have to do study for physics. Likewise, you have to do study for mathematics, right? So as far as preparation for these three subjects are concerned, you know, chemistry, theory and reaction part is there. So for theory part, you can use morning time, right? So morning time is always good, right? To grasp, to understand, or to keep that particular concept in mind effectively, right? Especially for mathematics subject, you can use evening or night time. As you know, for mathematics subject, most of the work, most of the things that you have to do by practice, that is writing practice, is required. You have to solve sum, you have to solve numericals, right? Likewise is there in case of chemistry, that is you have to go through the reactions, you have to do writing practice of that reaction, right? Starting material, product, reagent, right? In case of physics, right, you can select timing of your day as per your planning, right? So morning, afternoon and night, your call is to take subject, right, as per your convenience. So here students करते क्या है? Students पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं, पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं कि मुझे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, ये एग्जाम आने वाली है, राइट, एक साल के बाद, तो मुझे उसका प्रिपरेशन करना है. तो पूरे साल वो एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं. लेकिन मैं आपको पूछता हूं, वो पूरे एक साल जो आपने मेहनत की, पढ़ाई की, राइट, वो पूरी मेहनत, राइट, आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए कितने आवर्स मिलने वाले हैं? मान के चलो आपको सीईटी एग्जाम देनी है आने वाली, राइट, पीसीएम सब्जेक्ट की, तो आपको 3 घंटे मिलने वाले, 3 घंटे. तो पूरे साल की मेहनत जो है उसे आपको अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये 3 घंटे का प्लानिंग इफेक्टिवली करना पड़ेगा, कि जो बच्चे करते नहीं है, स्टूडेंट्स करते नहीं है, बस वो दिन रात साल भर पढ़ाई करते हैं एग्जाम के लिए, लेकिन वो पढ़ाई 3 घंटे में किस तरीके से उस पेपर को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से वो सब्जेक्ट के जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस है उसे प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेज करके वो पेपर कंप्लीट करना है, उसका मैनेजमेंट हार्डली 10% बच्चे करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, राइट. 3 आवर्स प्लानिंग, वो कैसे करना है? मान के चलो आपको पीसीएम का एग्जाम देना है, राइट, तो जब आप लॉग इन करोगे एग्जाम के टाइम पे, तो सबसे पहले आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये जो 2 सब्जेक्ट है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वहां पे आपको ऑप्शन रहेगा, राइट. यू विल गेट 90 मिनट्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. नाउ यहां पे आपका कॉल है कि आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट. यू हैव अ चॉइस. जो सब्जेक्ट आपको, राइट, इजी जाता है या आपको इजी लगता है और आप कॉन्फिडेंटली उसके क्वेश्चंस कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को आप पहले ले लो. मान के चलो किसी स्टूडेंट को केमिस्ट्री अच्छा जाता है और फिजिक्स थोड़ा टफ जाता है, तो आपको करना क्या है? केमिस्ट्री सब्जेक्ट पहले सिलेक्ट करना है, राइट, लॉग इन करने के बाद. तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट ओपन करने के बाद केमिस्ट्री के आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, राइट.
मैंने आपको बोला था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए टाइमिंग कितना है 90 मिनट्स। तो 90 मिनट में से आपको 40 मिनट्स में 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के सॉल्व करने हैं। 90 मिनट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अगर उसको हमने डिवाइड किया 2 से तो 45 मिनट्स हो जाते हैं। तो मैंने आपको बोला कि 40 मिनट्स में आपको केमिस्ट्री का जो 50 मार्क्स का पेपर है वो अटेम्प्ट करना है। एट द टाइम ऑफ आंसरिंग केमिस्ट्री पेपर फॉर एग्जांपल आपको करना क्या है, 2 राउंड लगाना है। पहला राउंड कौन सा है, इजी क्वेश्चन राउंड, कि जो क्वेश्चन इजी है जिसके आंसर आपको परफेक्टली पता है वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आगे जाना है। नो नीड टू मेंटेन सीक्वेंस। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, तीसरा क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है और वो बस वो क्वेश्चन के ऊपर सोचता रहता है और उसे पता नहीं चलता कि अरे ये क्वेश्चन के लिए मेरे 5 मिनट गए, 10 मिनट गए। तो मेरा कहना यह है कि फर्स्ट राउंड में आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन, वो सिंपल क्वेश्चन आपको सॉल्व करते जाना है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसे मार्क करके रखो, राइट। तो फर्स्ट राउंड आपका हुआ सिंपल क्वेश्चन का, राइट। तो सेकंड राउंड आपको देना है डिफिकल्ट क्वेश्चन का। डिफिकल्ट क्वेश्चन मींस आपको थोड़ा सा कुछ रफ वर्क करके उसका आंसर मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। तो ये जो फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, आपको 40 मिनट्स में कंप्लीट करना है। Are you ready? उसके बाद आपको फिजिक्स सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और फिजिक्स सब्जेक्ट जो है सेम उसी तरीके से फर्स्ट राउंड सिंपल क्वेश्चन राउंड एंड सेकंड राउंड डिफिकल्ट क्वेश्चन राउंड। तो फर्स्ट जो राउंड है आपका, जिस तरीके से आपने केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया उस तरीके से आपको फिजिक्स का अटेम्प्ट करना है और टारगेट रखना है कि 40 मिनट्स में आपको फिजिक्स कंप्लीट करना है। तो आपने केमिस्ट्री 40 मिनट्स में किया और फिजिक्स 40 मिनट्स में किया, तो कितने मिनट्स चले गए, 80 मिनट्स चले गए, राइट। टाइम लेफ्ट 10 मिनट्स, टाइम लेफ्ट 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में आपको करना क्या है, अगेन केमिस्ट्री को 5 मिनट देके सारे क्वेश्चंस एक बार ओवरलुक करना है कि आपने कुछ जल्दी में गलती की है या जो आपने आंसर सिलेक्ट किए है वो सही है या नहीं है। मींस आपको सिंपल उस केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करना है 5 मिनट्स में, और जो 5 मिनट्स बचते हैं उसी तरीके से आपको फिजिक्स के जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उसे एक बार देखना है कहीं गलती है या नहीं है। तो 90 मिनट्स के बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो एक्टिव लिंक है वो इनएक्टिव हो जाएगा और इमीडिएटली आफ्टर 90 मिनट्स आपका मैथमेटिक्स का पेपर चालू हो जाएगा। जैसे ही 90 मिनट्स खत्म हुए, मैथमेटिक्स का पेपर जो है उसके जो क्वेश्चंस है वो स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट होंगे। मैथमेटिक्स के लिए भी उसी तरीके से आपको करना क्या है, 2 राउंड लगाना है। मैथमेटिक्स लेट मी टेल यू 90 मिनट से आपके पास मैथमेटिक्स के लिए, और क्वेश्चंस कितने हैं 100 क्वेश्चंस 100 है, टाइमिंग कितना है 90 मिनट्स, राइट। अभी यहां पे आपको करना क्या है, 80 मिनट्स में 100 क्वेश्चन आपको खत्म करना है 80 मिनट्स में, राइट। तो उसके लिए सेम आपको 2 राउंड लगाना है। पहला राउंड इजी क्वेश्चन राउंड एंड सेकंड डिफिकल्ट क्वेश्चन राउंड। तो इजी क्वेश्चन राउंड में जो क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंटली उसके आंसर इजीली आ रहे वो आप सॉल्व करो। जहां आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है और उसे टाइम जाने वाला है, उसे मार्क करके रखो, राइट, और आगे चलो, राइट। तो पहला राउंड सारे सिंपल क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओगे। सी मैथमेटिक्स विल टेक टाइम, मैथमेटिक्स को टाइम ज्यादा लगता है, राइट, बिकॉज इट इज कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड। तो फर्स्ट राउंड होने के बाद सेकंड राउंड जो आपका बचता है डिफिकल्ट क्वेश्चन। कभी कभी होता क्या है कि बच्चे डिफिकल्ट क्वेश्चन पे सोचते रहते हैं और फिर टाइम आउट हो जाता है और फिर सोचते हैं अरे यार वो सिंपल क्वेश्चन मुझे आते थे लेकिन वो रह गए डिफिकल्ट क्वेश्चन की वजह से, राइट। तो आपको करना क्या है, सिंपल क्वेश्चन राउंड फर्स्ट कंप्लीट करो और उसके बाद जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करो, राइट। सो इन दिस वे यू हैव टू डू प्लानिंग फॉर योर 3 hours examination, right? So as I said, chemistry 40 minutes, physics 40 minutes in first part, and 10 minutes just overlook all the questions. 90 minutes will over, physics chemistry paper finish. After 90 minutes, mathematics question will start automatically, right? So for mathematics 100 marks, right? 100 marks, timing 90 minutes. So in 80 minutes you have to finish mathematics subject, first round simple question round and second one difficult question round, right? और आखिरी 10 minutes में आपको क्या करना है, उसे रिवाइज करना है। रिवाइज इन द सेंस कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो प्रॉपर तरीके से किए या कुछ गलती है, राइट। सो इफ यू डू लाइक दिस वे
definitely you able to score good marks in your examination. So I just want to conclude my session by saying one quote. Normal people says success knocks door only once. Normal people says success knocks door only once. But achiever says knock the door of success. Achiever says knock the door of success until success open the door. So thank you for watching my video. If you like, please like it and subscribe. Thank you.